مجھے جو پتا چلا وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے, لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں, تاکہ وہ سیکھیں کہ ہم یہ غلطیوں کا اعادہ نہ کریں, دوبارہ اعادہ نہ کریں. اب یہ فائنل پروڈکٹ ان تک نہیں, انہوں نے, یہ میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا. کور کمیٹی نے اس کو اون اپ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کرنے کی ہدایات دی. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا انکشاف. پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کو اون کیا ہے. بانی چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. لیگل کمیٹی کی رائے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں. رؤف حسن کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہمیں انصاف نہیں مل رہا. پی ٹی آئی نے ایٹمی ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا. 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں سہولت کاروں کو دیکھنا ہوگا ان کی سہولت کاری سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو ماضی کا قصہ بن جائے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا, وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں. ایک دن دیوار ان پر گر جائے گی. تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں, بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کسی کو حکومت پر اعتراض ہے تو عدالت جائے. 2018 میں ہمیں کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں وہاں جائیں. ہم بھی کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں آپ بھی وہاں جائیں. یورپی کمیشن کا پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار. یورپی یونین کے 31 مئی کے اجلاس میں پاکستان سول ایویشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان سول ایویشن شعبہ ریگولیٹری کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی. فلائٹ سٹینڈرڈ شعبے میں مطلوبہ معیار سے کم فلائٹ انسپیکٹرز کی تعیناتی بھی بحالی میں رکاوٹ. یورپی ملکوں میں بحالی نہ ہونے سے پی آئی اے کی نجکاری پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ. یورپی کمیشن نے سی اے اے شعبہ ریگولیٹری کے بڑے عہدے پر قابل افسران کی تعیناتی پر زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے دورے پر روانہ ہوں گے. اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم پہلے مرحلے میں شینزن پہنچیں گے. شینزن کو اقتصادی پاور ہاؤس کی حیثیت حاصل ہے. وزیر اعظم کا شینزن کا دورہ پاکستان کے لیے منفرد نوعیت کا حامل ہوگا. وزیر اعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے. کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے. وزیر اعظم چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں ہیں. پاکستان کو چینی کمپنیوں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کا موقع ملے گا. وزیر اعظم کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرہ سینٹر کا دورہ. پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا نوٹس. اوورسیز پاکستانیوں کے ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم. وزیر داخلہ کہتے ہیں پالیسی کا اطلاق دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا. مقررہ مدت میں پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف ایکشن لوں گا. وزیر داخلہ نے پی ایس او اے ایس پی شہربانوں کی سربراہی میں مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت پاکستانی ہائی کمیشن میں اجلاس. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی ملاقات. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات پر بات چیت. ہمدرد یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ارتقاء کو گولیاں مار دی گئیں. گلشن اقبال میں جان بحق نوجوان ارتقاء کی نماز جنازہ ادا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت ارکان اسمبلی کی شرکت. مقتول انجینئر کے بھائی یہ بات کا کہنا ہے ارتقاء نے مزاحمت نہیں کی تھی، اس کے باوجود ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں نے بھائی کی تلاشی بھی لی. ارتقاء گولڈ میڈلسٹ اور حافظ قرآن تھا. نوجوان ارتقاء کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی. گلشن اقبال پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا. کراچی کے لوگ کیا گاجر مولی کی طرح کٹنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ پہلے صرف شہریوں کو لوٹا جاتا تھا، اب سپاک ڈاکو جان بھی لے رہے ہیں.
सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं वज़ीर आला सिंध हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, इस काबिल सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं को यहाँ मुसल्लत करना चाहती है। अमन व अमान ठीक नहीं होगा तो अवाम हुक्मरानों को जूते ही मारेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं शहर के लोग कब तक तालिब इल्मों की लाशें उठाते रहेंगे। 5 माह के दौरान 80 से जायद शहरी डकैती मुजाहिमत पर जान से चले गए। लाड़काना के इलाके रत्तोडेरो में 2 ग्रुपों में खौफनाक लड़ाई, असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, शहर मैदान जंग बन गया। जलबानी और वसीर बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने शहर के बीचों बीच गोलियां बरसाईं, एक दूसरे पर क्रैकर बम फेंके। जदीद असलहे के इस्तेमाल से शहर में खौफ व हिरास, रेशम बाजार भी बंद हो गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान का तो फलस्तीन के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है। कायदे आजम ने कहा था कि इसराइल मगरिब का नाजायज बच्चा है और कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी का मिलियन मार्च। हाफिज नईम रहमान ने खिताब में कहा कायदे आजम ने इसराइल को मगरिब का नाजायज बच्चा कहा था। बच्चे इजरायली मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमास की हिमायत क्यों नहीं करती? बानी पीटीआई को जेल से बयान देना चाहिए कि वो हमास के साथ हैं। बानी पीटीआई के बयान से पाकिस्तान के अवाम को हौसला मिलेगा। इजराइल इंसानियत की तजलील कर रहा है। अमरीका इजराइल का सहूलतकार बना हुआ है। अमरीकी अवाम अमरीकी हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये जुर्रत हमास की वजह से मिली। मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जेल में बैठा हुआ शख्स इतना इन पे भारी आ गया है कि इन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। खान साहब के लिए बाहर निकलना मसला नहीं है। वो उन लीडर्स में से नहीं है कि जो प्लेटलेट्स कम करके दौड़ जाएंगे। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर पंजाब को बिल्डोज कर रही हैं। इन्होंने हमें दीवार के साथ लगा दिया। बानी पीटीआई डील नहीं चाहते, वरना जेल से निकलना 1 मिनट का काम है। उनके प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, वो डटे हुए हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं टिकटॉकर वजीर आला पंजाब सूबे को बुलडोज कर रही हैं। हमारे मुंतखब अरकान और वर्कर्स पर मुकदमात की लहर उठी हुई है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने वालों को खबरदार करना चाहता हूं, कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को उस वक्त तक ही ढील है जब तक पीटीआई और मौलाना इकट्ठे नहीं होते। अब इस इत्तेहाद में कितना वक्त लगना है ये देखते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मुजफ्फरगढ़ में इंतहाई गर्मी में जलसा किया। फजल रहमान के खिताब की गर्मी ने जनूबी पंजाब की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुल्तान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जावेद हाशमी फजल रहमान की ख्वाहिश पर उनके घर जाकर मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों की राबता कमेटियों की 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है नून लीग पावर शेयरिंग फार्मूला से मुताल्लिक गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी को जिले सतह पर कायम कमेटियों में शामिल नहीं किया जा रहा। एमपीएज नजरअंदाज हो रहे हैं, फंड्स जारी नहीं किए गए। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लिया और कोटद्दू में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, डीआई खान, जैकबाबाद, दादू, सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, बहावलपुर और लाड़काना में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड। रहीम यार खान, बन्नू और सखर में 43 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में हीट वेव का जोर टूट गया, गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्किल। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका का फातिहाना आगाज। कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त।
अमेरिका ने 195 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। एरन जॉन्स ने 40 गेंदों पर 94 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी मध्य मुकाबले। पापुआ न्यू गिनी ने काली आंधी को 137 रन्स का हदफ दे दिया। काउबॉय का अंदाज, कौमी टीम ने दिन बनाया खास। कौमी क्रिकेट स्टार्स की टेक्सास में मौज मस्तियां घुड़सवारी के मुकाबलों से महसूस हुए। अब्बास आफरीदी ने वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा और हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजर्बा और चैलेंज होगा। सिर्फ भारत का नहीं, तमाम मैच हमारे लिए अहमियत रखते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना मैच जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम पाकिस्तान अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का वीडियो पैगाम। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कहा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ गो हूं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। नहम जमात का उर्दू का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर नकल का बाजार गर्म, इंतजामिया बेबस। पंजाब में 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। होटल्स और फूड पॉइंट्स पर प्लास्टिक बैग्स में खाना देने पर पाबंदी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और नकासी आब का निज़ाम, राबता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में 13 जख्मी जेर इलाज, 7 की हालत तशवीशनाक। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की पेटाबाद सानहे के मुतासरीन से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लिए वर्सा के लिए 10 लाख, जख्मियों के 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गजा में इसराइली बमबारी से 2 रोज में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। कतर, अमरीका और मिस्र का इसराइल और हमास से सदर जो बाइडन के मुजव्वजा मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम की हरधर्मी बरकरार, कहा हमास के खात्मे तक मुआहिदा नहीं करेंगे। हमास का कहना है जो बाइडन की जानिब से अभी तक मुआहिदे की कोई दस्तावेज नहीं मिली। अमरीकी रियासत डेलावेयर, तेल अवीव और पेरिस में मुजाहरे। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। चीन का मिशन चांगी 6 कामयाबी से चांद पर उतर गया। तहकीकी मकासद के लिए चांद से पत्थर और मिट्टी जमा करके जमीन पर आएगा। चीनी मिशन के साथ पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट ICube कमर भी भेजा गया था, जो चांद के मदार में घूम रहा है। पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और मिसाल। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली क्रिश्चियन खातून। मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुल्क को कौम की खिदमत करने को एजाज समझती हैं। पाकिस्तान आर्मी में मजहबी, लसानी और जिनसी तफरीक से कतई नज़र फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की सहाफ़ियों के मुफ्त इलाज के लिए सूबाई वज़रा पंजाब सलमान रफीक और इमरान नज़ीर से मुलाकात। वफ्द ने इलाज मुआलजे से मुताल्लिक पंजाब के सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह किया। वज़रा ने यकीन दहानी कराई वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सहाफ़ियों के लिए हेल्थ पैकेज तैयार किया जा रहा है। PFUJ के वफ्द में सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, सेक्रेटरी NPC नैयर अली और वकार अब्बासी शामिल थे। वापस ले जाएंगे, यहाँ सस्ता नहीं बेचेंगे, बेच कर जाएंगे, अपने मर्जी से बेचेंगे। अल्लाह का एक बीज लगा रहे हैं ना, उतने में ये 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दे देंगे, लेकिन जो ग्राहक आएगा 20 दिन पहले उसको नहीं देंगे उतने में जानवर। सर कम कर देंगे ऐसे तो पहले तो हम नहीं देंगे, पहले या बाद। ईद कुर्बान की आमद, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक जानवर ग्राहकों को लुभाने लगे। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सिब्बी के बैल तवज्जो का मरकज। वीकेंड पर व्यापारियों के सौदेबाजी में तेजी आ गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में बकरों का रश। कौमी स्क्वाश स्टार महानूर अली ने सोने का तमगा जीत लिया। सिंगापुर जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में
सेकंड सीड चीन की फेंग चिन को शिकस्त दी। महानूर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौमी स्पीडस्टर शाहीन आफरीदी दी 100 लीग से दस्तबरदार हो गए। पेसर कनाडा की G20 लीग खेलने में दिलचस्पी रखते हैं। शाहीन को दी 100 में वेल्श फायर की नुमाइंदगी करना थी, जहां उनका 1 लाख पाउंड का मुआहिदा हुआ था। दोनों लीग्स के शेड्यूल में टकराव है। शाहीन ने ऑफिशियल तौर पर G20 के मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पर जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिए। अदाकार फैसल कुरैशी आज बनेंगे हर लम्हा पर जोश के मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और नन्ना की मासूमाना शरारतें, बरजस्ता जुमले मद्दाह आज भी नहीं भूले। मुमताज मज़ाहिया अदाकार की बरसी। अदाकार नन्ना का असल नाम रफ़ी खावर था। मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत हासिल की। नन्ना और कमाल रिजवी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया।